Good evening, everyone, the students and my team, Dr. Manish Rai, Professor Manish Gurdasani, and my students. Frankly speaking, this is the first year in the history of Padma coaching classes that we are starting such small diploma type courses. Actually, the idea of starting these courses came from one of my best friend, rather my brother. I am proud to introduce my brother today, sitting in this particular Zoom meeting, Dr. Manish Rai. Dr. Manish Rai is my professor, colleague, but frankly speaking, he is the best human being I ever seen in this planet. And this is the brain idea of Manish Rai sir only. Okay, sir, why not to start some small courses which are being beneficiary to the students? Frankly speaking, we are teaching you 11th standard, 12th standard, graduation, post-graduation. Of course, chartered accountancy also. But this is a smallest course which we are introducing today, where you can earn millions of rupees, rather trillions of rupees. Of course, education is must. I'm not saying education छोड़ने के बाद आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के शेयर मार्केट में घुस जाओ. But everybody knows that share market is a market where we can earn a lots of rupees sitting at your home. Friends, this particular course which we are going to start today, as I told you, my brother, my teacher, Manish Rai, Dr. Manish Rai is in charge of this particular course. Today being introductory lecture, he will tell you okay, how we are being associated to National Stock Exchange and how your paper will be conducted after the portion has been completed. Let me introduce you, Dr. Manish Rai. MG sir, please share the CV of Dr. Manish Rai. MG sir. When I called Manish Rai sir, because he's not in Ulhasnagar and Mumbai, he is joining us from Bhopal. When I called Manish Rai sir, okay, sir, I just wanted to speak some words for you. So Manish Rai sir has sent me 8 pages का CV. तो मैंने बोला sir, 8 pages का CV अगर मैंने बोला तो it will take 1 hour. So at least one sentence is enough instead of speaking 8 pages. He is a good human being. He's a good brother of mine, which I have ever seen in this planet. But Manish Rai sir, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो सर अनम्यूट करके बात कर सकते हो. सर आपने मुझे धोखा दिया, आप मुझे उल्लासनगर में अकेला छोड़ के भोपाल चले गए. मनीष राय सर पद्मा कोचिंग क्लासेस से एसोसिएटेड है अभी भी, हमेशा रहेंगे, कभी आप मेरे से सेपरेट नहीं हो सकते हो सर. लेकिन सर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी भोपाल में सेज यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने वहां जाना पसंद किया. लेकिन उसके बावजूद भी हम अलग हुए हैं डिस्टेंस वाइज फिजिकली, लेकिन दिल से कभी आप निकाल नहीं सकोगे मुझे, ना मैं आपको निकाल पाऊंगा. यू आर माय बेस्ट फ्रेंड आई एवर हैव इन दिस वर्ल्ड. सर थोड़ा सा इसको ऊपर ले लीजिएगा और थोड़ा. हाँ, सर की जर्नी को स्टार्ट करूं तो सर हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, देन ही कंप्लीटेड हिज एमकॉम इन कॉस्टिंग. Sir has completed MA in economics. He is the person who has completed SET twice and NET once.
NET he's completed in 2012 in commerce. SET is completed twice. One is in economics and one is in management. He's also completed so many of degrees in CFA, then MFA, and सबसे बड़ी बात, he will be PhD holder within a few days. Sir, I need a party from you. When you completed the PhD, I need a party. Because you're already PhD holder, I address you as a Dr. Manish Rai, because I know you being already completed from Pune University. But मैं चाहता हूँ कि ऑफिशियल डिग्री मिलने के बाद मैं एक पार्टी भी लूँ आपसे. Sure, sir. Sure. सर के बारे में मैं और चीजें बता दूं थोड़ी सी कि sir has an experience of nearly 25 years of teaching in different colleges and universities, of course. He has a research papers, nearly 6 research paper he has already submitted. He completed conferences, international conferences and national conferences. National and international seminars and conferences he attended and addressed also. He has a patent published also. Sir, can you little bit faster, because students definitely wanted to know about more of Manish sir and definitely wanted to listen. इतना बड़ा सर पकड़ के लाए हैं सर भोपाल यूनिवर्सिटी से, तो इस सर से बात करनी है. लाल सर तो हमसे रोज मिलते हैं. तो वेबिनार्स, सर ने बहुत सारे वेबिनार्स कंडक्ट भी किए हैं और बहुत सारे वेबिनार्स में खुद बहुत बड़ी एड्रेसेस भी की हुई है. कॉन्फ्रेंसेस, इन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की हुई है भोपाल में. सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं. सर अवार्ड्स दिखा दीजिए. हाँ, सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. if I go through by the list, I told you 8 pages of awards. तो मैंने एक वर्ड ढूंढ लिया. सर कॉमर्स का बंदा हूं, मैंने शॉर्ट में बता दिया कि यू आर द गुड ह्यूमन बीइंग आई एवर सीन. क्लियर फ्रॉम माय हार्ट कि यू आर बीइंग बेस्ट टीचर एंड बेस्ट कलीग ऑफ माय लेक्चर्स. सर ने बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में गोवा तक लेक्चर्स लिए. सर ने गोवा में भी लेक्चर्स लिए और सर ने भोपाल यूनिवर्सिटी में तो अभी बहुत अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं. भोपाल यूनिवर्सिटी के सेज यूनिवर्सिटी में जब जाओगे ना और आप मनीष राय का नाम ले लेंगे, कभी भोपाल जाना हो या कोई भोपाल में आपका रहता हो, तो सेज यूनिवर्सिटी में आप मनीष राय बोल देंगे तो एवरीबडी नोज अबाउट हिम. ही इज एन वेरी एक्टिव, रादर ही इज अल्ट्रा एक्टिव पर्सन इन सेज यूनिवर्सिटी. सर वेट करिएगा, सर वेट करिएगा. हाँ सर, सेज यूनिवर्सिटी में सर इज मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज, member of students affairs and governance resident. He is a member of library also. He is a member of documentation and accreditation ranking. He is also a member of elegant group. And sir ने बहुत सारी responsibilities अभी सेज यूनिवर्सिटीज में ली हुई है. सर वो responsibility, major responsibilities जो सर ने अभी complete की हुई है, उसमें से 10 responsibilities सर ने लिखी हुई है कि यार बंदा बहुत काम का है और बहुत knowledgeable, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल. शेयर मार्केट में तो बंदा बाप है समझो, राइट. तो सर मैं ज्यादा बोलने के बजाय आई हैंड ओवर दिस मीटिंग टू यू कि यू शुड प्रोसीड. कि लाल सर तो चलो रोज मिलते हैं इन सब बच्चों को. भोपाल यूनिवर्सिटी से, भोपाल से सेज यूनिवर्सिटी से मनीष राय सर, डॉक्टर मनीष राय, ओवर टू यू. थैंक यू सर. डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें जैसे सर ने मेरे बारे में बताई, मुझे भी कुछ बताना है कि सर ने जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी है वो तो मैं पूरा करूंगा ही. एट द सेम टाइम कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सर के बारे में कि सर इज द मोस्ट क्वालिफाइड प्रोफेसर इन इंडिया, वी कैन से. अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम आया है कि मोस्ट एडुकेटेड एंड मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन अगर हम लोग देखें, मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, लेकिन अब तक उनके जैसा बन नहीं पाया. दो पीएचडीज ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है. मैं सब लोगों से बात करना चाहूंगा इस बारे में कि आप अपने कॉलेज में या आप अपनी यूनिवर्सिटी में अगर किसी को भी देखेंगे तो सर के जितना क्वालिफाइड कोई भी नहीं है. तो बीइंग एसोसिएटेड विद सच अ ग्रेट पर्सन, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए.
सेकेंड थिंग, सर ने बोला कि ये दिस वाज माय आइडिया, मैं उसका है ना थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा कि सर और मेरी मुलाकात हुई एक बार, क्योंकि बिकॉज आई वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स भोपाल, उसके बाद सर से बात हुई तो उन्होंने एक चीज बोली कि यार मनीष, कुछ ना कुछ ना यार स्टूडेंट्स के लिए करना है मेरे को, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स का फायदा हो, जो स्किल्स, प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट और स्किल्स से रिलेटेड, तो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल आइडिया जो सर को एकदम से क्लिक हुआ। सर ने बोला यार नहीं मनीष, मेरे को है ना स्टूडेंट्स के बेहतरी के लिए कुछ करना है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स स्किल्स, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते उनके पास इतने स्किल्स आ जाएं, इतने सर्टिफिकेट्स आ जाएं कि वो जॉब भी कर सकते हैं। और बीइंग क्लोज टू उल्लासनगर, मैंने एक चीज देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे प्रेफर बिजनेस रादर देन डूइंग जॉब। तो ये जो कोर्सेज है, ये आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आपको जॉब चाहिए तो यू विल बी इजीली सिलेक्टेड विदाउट गिविंग 2 or 3 टाइप ऑफ इंटरव्यूज, क्योंकि योर क्वालिफिकेशन विल एक्सप्लेन इट एवरीथिंग अबाउट यू, जो आपके क्वालिटीज है। जब आप शेयर मार्केट, अगर शेयर मार्केट के सर्टिफिकेट्स आपके पास है और इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो सामने वाला आपको क्या पूछेगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड 2 or 3 क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपने उनको जवाब दे दिया तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है फॉर दोज इंटरव्यूज, बिकॉज आई एम डैम श्योर यू विल बी सिलेक्टेड राइट ऑन द फर्स्ट 5 minutes ऑफ योर इंटरव्यू इटसेल्फ। पहले 5 मिनट में ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट सर ने स्टार्ट किया है, उसमें एक छोटा सा मैंने एक कंट्रीब्यूशन दिया है। बाकी सब सर की ही सोच है कि किस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा काबिल बनाया जाए, स्किलफुल बनाया जाए। तो उसी में हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं विथ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ सीरीज। ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं होगा या एक ही सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसके बाद हम लोग बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इसी से रिलेटेड करेंगे, सिर्फ फाइनेंस से नहीं। आने वाले टाइम में हम लोगों ने प्लान किया है सर के साथ कि और भी सेक्टर्स है जहां पे आप सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हो, और ये सब सर्टिफिकेट्स के साथ नॉलेज भी, सर सॉरी सर, बट नेचुरल, सर्टिफिकेट के साथ नॉलेज, स्किल। सर बच्चे हमारे इतने कैपेबल है ना, मुझे लगता है कभी कभी इनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, नहीं तो ये लोग तो उल्लासनगर से निकल के कहां पे भी जा सकते हैं मेरे बच्चे। श्योर श्योर। तो let me start with the basic things related with this particular concept. Just a second. सर आप अपना पीपीटी शेयर करिए, तब तक मैं लास्ट वर्ड्स बता दूं। यू हैव टू बी इन टच विद मनीष राय सर, डॉक्टर मनीष राय is heading he is being handing, I'm handing over the charges to Zoom meeting to sir. Sir, I'm leaving and you take care of the students. Okay, okay sir, thank you, thank you very much. Thank you, take care sir. Thank you. So dear students, can you view my slide? क्या मेरी स्लाइड आप सबको दिख रही है? Okay, that's very fine. So there are some of the students जिनकी गर्दन हिली तो मुझे मालूम पड़ा कि yes, that's very fine. Equity derivatives. Now before starting equity derivatives, there are certain things which I have to tell you. Equity derivatives, हम सब लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। देयर आर हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस? मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस सिर्फ 2 ही बोलेंगे कि देयर आर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट यू आर रॉन्ग, देयर आर वेरियस रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। क्या आपको मालूम है पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है? क्या आपको मालूम है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है? दीज आर रीजनल प्लेयर्स। अब स्टॉक एक्सचेंज तो ठीक है, लेकिन यहां इक्विटी डेरिवेटिव्स कंप्लीट होने के बाद स्कोप क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द स्कोप, व्हाट इज द स्कोप? मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स आप खुद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आप बिजनेसमैन बन सकते हो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज दीज आर द सर्टिफिकेट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ शेयर मार्केट ऑफिस। आपने उल्लासनगर में ही देखा होगा बहुत सारे शेयर मार्केट के ऑफिस हैं रिलेटेड, और फ्रेंचाइजीज ऑफ एंजल ब्रोकिंग और शेर खान या फिर मोतीलाल ओसवाल।
ऐसे कोई भी ऑफिस स्टार्ट करने के लिए ये सर्टिफिकेट्स कंपलसरी है। विदाउट दीज सर्टिफिकेट्स आप कोर्स या अपना खुद का ऑफिस नहीं डाल सकते हैं। आप सबको एक चीज बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कोई भी मेडिकल शॉप स्टार्ट करने के लिए फार्मेसी की डिग्री होनी जरूरी है। In the same way, if you want to start your own, stock market office, these certificates are mandatory, compulsory. अब दूसरी बात, चलो ठीक है, आप इक्विटी डेरिवेटिव्स कर रहे हो, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए क्वालिफिकेशन कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन यू मस्ट हैव योर पैन कार्ड। आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। अब अज्यूम करो कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है और मैंने लाल सर के से पैन कार्ड लिया कि सर आपका पैन कार्ड दे दीजिए, मैं आपका फॉर्म भर के और मैं एग्जाम दे दूंगा। तो लाल सर विल बी वेरी हैप्पी कि चलो मनीष एग्जाम देगा, लेकिन सर्टिफिकेट किसके नाम पे है? लाल सर के नाम पे आएगा सर्टिफिकेट। अच्छा, फिर मेरी जो सपना है कि मैं एक ऑफिस स्टार्ट करूं, तो मैं ऑफिस स्टार्ट कर सकता हूं क्या? नहीं। या फिर दूसरी कंडीशन यह है कि मेरे को उनसे रेंट पे सर्टिफिकेट हायर करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये रेंट पे भी बिकते हैं। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे होता है रेंट पे? याद रखना, ये सर्टिफिकेट के 3 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया। चलो, आप में से किसी स्टूडेंट ने बोला सर मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मेरे को जॉब करना है। सेकंड, यू कैन गेट बेटर जॉब बिकॉज यू आर क्वालिफाइड, यू आर स्किलफुल। आप स्किलफुल हो, आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेट दे रहा है। इट इज नॉट मी मनीष राय हु इज गिविंग यू दैट सर्टिफिकेट। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज अमेरिका में या लंदन में किसी को शेयर्स खरीदना है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीद सकता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट। दिस इज द सेकेंड थिंग। तो आप जॉब इजीली अवेलेबल है आपको इन कोर्सेज के बाद। सेकेंड, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और थर्ड, अज्यूम करो कि कोई स्टूडेंट है आप ही के बीच में जिसने उसको उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं फोटोग्राफी करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, मेरे को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है। तो क्या वो अपना सर्टिफिकेट रेंट पे दे सकता है? यस, रेंट पे भी दे सकता है। तो दिस इज द थर्ड बेनिफिट। और मैं जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता हूं तो मैं फोर्थ बेनिफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। फोर्थ बेनिफिट, अज्यूम करो, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फैमिली बिजनेस है ना। अब डैडी ने बोल दिया कोई जरूरत नहीं है शेयर मार्केट का ऑफिस स्टार्ट करने के लिए, आप एक काम करो कल से दुकान पे आ जाओ। तो क्या करेगा? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स। मेरे को बताइए, पैसे कमाना बहुत आसान है। मेरे डैडी हरदम बोलते थे कि पैसे कमाना बहुत आसान है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अच्छा काम करोगे पैसे ज्यादा टाइम तक टिकेंगे, बुरे काम करके पैसे कमाओगे तो पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे और आप जेल में जा सकते हो। तो पैसे कमाना इजी है, लेकिन वो पैसे को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धीरूभाई अंबानी एंड अनिल अंबानी? धीरूभाई अंबानी वाज डैड, अनिल अंबानी वाज हिज सन। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने जीरो से हीरो बने। वो क्यों? पैसे मल्टीप्लाई करना आया उनको। अनिल अंबानी को करोड़ों की प्रॉपर्टी एक साथ मिली, लेकिन वो हीरो से जीरो बन गए। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो आप लोगों को यहां एक स्किल सीखना है कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप में से कोई स्टूडेंट फोटोग्राफी कर रहा है, या कोई फैमिली बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई हाउसवाइफ बन गई, लेकिन उसको मालूम है, उसके पास एक स्किल है। क्या स्किल है? पैसे को मल्टीप्लाई करने का। कि मेरे को मालूम है पैसे कहां इन्वेस्ट करना है और कैसे पैसे से पैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से मैं पैसे से और पैसा इन्वेस्ट करके, सही जगह पे इन्वेस्ट करके, सोच समझ के इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। मैं आप में से अगर किसी को पूछूं आपके पास अगर 15 लाख रुपए हैं तो आप क्या करोगे? तो
तो आप लोग, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए ये इतना इजी नहीं है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क है। यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव्स में, आपको सिखाऊंगा हेजिंग जो आएगा। हेजिंग मतलब किस तरीके से लॉस को कवर किया जा सकता है, लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। So there are n number of things which we will be learning in this particular equity derivatives. मेरे को I don't have any idea about your fees, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे कई centers हैं which takes lakhs of rupees for these courses, these certificates. लाखों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं ये सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन सर ने बोला नहीं ठीक है यार अपने को चालू करना है। मैं बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। Now, for same thing, I charge various amounts to various organizations. Equity derivatives पे मैं कोई पहली बार आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। I have been teaching these concepts from years, and you are lucky enough that because लाल सर बड़े भाई के जैसे है, तो आपकी जो फीस है वो बहुत कम है, तो you should be thankful to him. ठीक है। नाउ इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। मेरे को सिर्फ बताइए कि क्या स्लाइड चेंज हुआ, क्या आपको कंटेंट्स दिख रहे हैं? हैज द स्लाइड चेंज्ड? साची मेरे को बता रही है कि नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग। Is it changed now? Equity derivatives से okay, so these are the 10 chapters. ये 10 chapters है जो हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे हम, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स मतलब क्या होता है आपको मालूम है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को हम लोग निफ्टी बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। तो ये बनता कैसे है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। अब फॉरवर्ड अलग कंसेप्ट है, फ्यूचर अलग कंसेप्ट है, दोनों थोड़े से मिलते जुलते तो हैं लेकिन टोटली कंसेप्ट्स अलग है। वो क्या अलग है, कैसे अलग है, वो हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि दीज आर प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फर्स्ट डे पे ही करना चाहूंगा कि प्लीज सब लेक्चर्स बैठिएगा, कोई भी लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों को 100 पेजेस का एक नोटबुक सेपरेट रखना है क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये मैं अभी अगले स्क्रीन पे आप लोगों को बताऊंगा कि आपका एग्जाम कैसे होगा, क्या है क्या नहीं। तो एक 100 पेजेस का नोटबुक अगर आप सेपरेट बना के रखेंगे। सेकेंडली, मैं आप सबको बता रहा हूं, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यस और नो? मतलब एक 100 रुपए भी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस वाले, आर्ट्स वाले, मैनेजमेंट वाले, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉमर्स वाले के लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाट इज द रीजन? अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा तो आप सब हंसोगे। 100 रुपए से भी अगर हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होता ना तो दिमाग खराब होता है कि 100 रुपए गए किधर। कई बार तो ऐसा लगता है ना, ये 100 रुपए निकाल के रखो यार, टैली करो यार, कहां गया वो 100 रुपया। तो वी आर रेडी टू इन्वेस्ट 100 रुपीज और एक्सपेंड 100 रुपीज, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है वो पैसा गया कहां है। पैसा बुक्स में ही है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने थोड़ा सा हमारा ध्यान भटका और हमने कोई एंट्री बराबर नहीं की। तो पैसे का सब मेरे को बताइए, आप लोग 12th स्टैंडर्ड या फर्स्ट ईयर में होगे, आप सब सोचिए, आप आज की डेट में लाखों में खेल रहे हो क्या? कॉमर्स छोड़ के आर्ट्स या फिर मैनेजमेंट या फिर साइंस का बच्चा 12th पास करने के बाद लाखों में खेलता है क्या?
आज आप लोग बुक कीपिंग में लाखों में खेलते हो कि 10 लाख की मशीनरी खरीदी, उसमें 10% डेप्रिसिएशन है, कैलकुलेशन सबसे ज्यादा हम करते हैं। तो पैसे की इंपॉर्टेंस बेटा किसको होगी? कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा पैसे की इंपॉर्टेंस रहती है। यस और नो? सो दीज आर द थिंग्स। तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, फिर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। अब याद रखना, फ्यूचर्स अलग डेरिवेटिव है, ऑप्शंस अलग डेरिवेटिव्स है। तो यहां हम दो डेरिवेटिव्स देखेंगे, फ्यूचर्स अलग जो थर्ड चैप्टर में देखेंगे, और ऑप्शंस अलग जो फोर्थ चैप्टर में देखेंगे। और उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर आएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज करना चाहिए जब आप मार्केट में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कोशिश ये करिएगा, जो मिठाई बनाने वाला होता है वो मिठाई खाने के लिए बनाता है या बेचने के लिए? बेचने के लिए। आप सबको भी यही करना है कि आप ये स्ट्रैटेजीज जब पढ़ोगे तो इसको यूज करोगे, लेकिन बुकिश अकाउंट्स में खुद के पैसे इन्वेस्ट करके लॉस करके सीखने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज हम अपने कस्टमर के लिए दिखाएंगे, खुद को यूज नहीं करना है। क्योंकि मैंने आज तक एक चीज देखी है कि जब हम खुद के लिए खेलते हैं तो हम ज्यादा इमोशनल रहते हैं। नहीं यार ज्यादा लॉस हो जाएगा, निकल जाते हैं। अरे यार प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा ही प्रॉफिट है, चलेगा, बाहर निकल जाते हैं। इससे होता क्या है कि थोड़ा सा ही प्रॉफिट कमाया, क्योंकि हम इमोशनल थे, खुद का पैसा लगा था, तो हम लोग जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। बाद में मालूम पड़ता है अरे यार रुकते ना, और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा लॉस हुआ है और हम लोग डर जाते हैं, नहीं यार खुद का पैसा है, थोड़ा सा ना एग्जिट कर लेते हैं, जबकि इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा रुको, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन डर जाते हैं, नहीं यार एक काम करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि विड्रॉ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और विड्रॉ करने के बाद फिर वो ऊपर चले जाता है शेयर्स। फिर हम लोग बोलते हैं अरे यार थोड़ा सा रुक जाते तो और प्रॉफिट कमा सकते थे, लॉस में बेच दिया, फालतू में लॉस हो गया। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है बेटा। ऑप्शन में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होगी वो भी आपको यहां सीखने मिलेगा। फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम। अज्यूम करो कि मैं आई एम स्टेइंग इन भोपाल एंड आई एम परचेसिंग 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, and Payal Bharadwaj is sitting in Kalyan or Ulhasnagar and she is selling. Now I am purchasing 10 shares and she is selling 10 shares. Both are buying and selling of same company, Reliance Industries. तो ये होता कैसे है? तो ट्रेड कैसे होता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका क्या सिस्टम है, ये सिस्टम हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम। कि इतना बड़ा सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम है। हो सकता है मैं यहां से परचेज कर रहा हूं, आई एम इन भोपाल, एंड बिल गेट्स हु इज सिटिंग इन अमेरिका इज सेलिंग, क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम। इसके बाद क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कैसा होता है, ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में। व्हाट डू यू मीन बाय क्लियरिंग एंड सेटलमेंट? आप सबको मालूम है कि बैंक अकाउंट होता है, आप सबके बैंक में अकाउंट होंगे, किसी ना किसी बैंक में। अब अज्यूम करो कि आप लोगों ने फीस का पैसा, जो फीस है उसका आपने एक चेक बनाया, आपका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। अज्यूम अगेन हम लोग करेंगे अबाउट अ स्टूडेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वैभव की बात करेंगे। नाउ वैभव इज हैविंग एन बैंक अकाउंट ऑफ एचडीएफसी एंड ही वांट टू पे अ फीस, ठीक है। तो उन्होंने एक चेक बनाया एचडीएफसी का इन द नेम ऑफ पद्मा कोचिंग क्लासेस। अब पद्मा कोचिंग क्लासेस का जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरे को बताइए, एचडीएफसी में वैभव के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके ये पैसा पद्मा कोचिंग क्लासेस के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में कैसे आएगा? तो दैट इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। ऐसा ही सेम सिस्टम बेटा शेयर मार्केट में होता है, ठीक है। क्योंकि वहां हमारा बैंक अकाउंट नहीं होता है, लेकिन बैंक अकाउंट जैसा एक डीमैट अकाउंट होता है। अब डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। मैंने, मनीष राय ने ट्रेडिंग करके रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, तो दैट इज, जो मैं खरीद रहा हूं दैट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अल्टीमेटली वो शेयर्स कहां जाएंगे?
वो जाएंगे मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो माय डीमैट अकाउंट इज कनेक्टेड विथ माय ट्रेडिंग अकाउंट। तो व्हेनेवर आई परचेज शेयर्स, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स जा रहा है, कहां जा रहा है? मेरे डीमैट अकाउंट में। अच्छा, फिर जब मैं बेचूंगा तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में बेच दिया, जैसे ही मैं बेचूंगा तो मेरे शेयर्स कहां से विड्रॉ होंगे? फ्रॉम माय डीमैट अकाउंट। सो दिस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में। इसके बाद है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट, हर चीज के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग हैज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप अगर हम लोग पद्मा कोचिंग की बात करें, आपके कॉलेज की बात करें, तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी हैव टू फॉलो। ट्रैफिक सिग्नल, आप एक टू व्हीलर भी चला रहे हो तो ट्रैफिक सिग्नल यू हैव टू फॉलो। सो देयर आर सर्टेन लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट व्हिच ईच एंड एवरीवन हैज टू फॉलो। जो लोग लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉलो नहीं करेंगे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, पेनल्टीज लगाई जाती है, इवन दे कैन बी सेंट बिहाइंड बार्स, जेल भी हो सकती है। तो लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अब आप लोगों ने तो देखा होगा, नाम भी सुना होगा, हर्षद मेहता का नाम सुना है आपने? मूवी भी आई थी उसकी कई सारी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में जो लूप होल्स थे, लीगल लूप होल्स, उसका फायदा उठाते हुए पैसे कमाए, और जिसके वजह से उसको पैसा भी भरना पड़ा और जेल भी हुई। तो ऐसे क्या लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अज्यूम करो रिचा इज देयर नाउ, रिचा शी हैड अर्नड, एक साल में उसने डेरिवेटिव से 50 लाख रुपीस अर्न किया। तो अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाना चाहिए, टैक्सेशन क्या होगा, कौन कौन से टैक्स ऑलरेडी शी हैड पेड व्हाइल बाइंग और सेलिंग शेयर्स। तो शेयर्स बाय करने के टाइम पे या शेयर्स सेल करने के टाइम पे उसने कौन कौन से टैक्स भरे, क्या वो अपने आईटी फाइल में वो सब टैक्स बता सकती है या नहीं बता सकती है? उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स क्या लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड है, कौन सी टाइप की है? तो बेसिकली यहां पे जो टैक्सेशन हम पढ़ने वाले हैं वो इक्विटी से रिलेटेड टैक्सेशन है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टैक्सेशन है। तो हम लोग ये भी चीज पढ़ेंगे इसमें। एंड द लास्ट इज सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज। इन्वेस्टर्स, याद रखना, सेबी नाम सुना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या काम करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, नजर रखता है, मॉनिटर करता है कि सब काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जितने ब्रोकर्स हैं, जितने सब ब्रोकर्स हैं, उन लोग अपना काम बराबर कर रहे हैं या नहीं, रजिस्ट्रार अपना काम बराबर कर रहा है या नहीं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में कोई लूप होल तो नहीं है कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आगे चल के खुद का बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप सेल्स प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए आपके लिए, याद रखना, मैं फिर से बात कर रहा हूं, आप अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खुद का ऑफिस डाल रहे हो, तो उसमें सेल्स प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, और इन्वेस्टर्स को क्या क्या प्रोटेक्शन सेबी ने प्रोवाइड किया है, ये हम लोग यहां देखेंगे। तो दिस इज योर सिलेबी ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स। अगर आप में से किसी को कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ क्वेरीज है तो यू कैन रेज योर डिजिटल हैंड्स। आपके पास दो हाथ नहीं है, आपके पास दो हाथों से ज्यादा है, तो एक डिजिटल हैंड भी है जिसको आप हैंड्स रेज कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं अनम्यूट करूंगा, वो अपने क्वेरीज पूछ सकता है। तो बेटा मेरे को ये बताइए कि क्या ये सिलेबस समझ में आया सबको, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या स्लाइड चेंज हुआ? ओके, नाउ असेसमेंट स्ट्रक्चर, ये बात करेंगे हम लोग एग्जाम कैसा होगा, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां देख सकते हो द NISM सीरीज 8। नाउ देयर आर वेरियस सीरीज, हम लोग यहां जो इक्विटी डेरिवेटिव का सीरीज है, इट इज सीरीज 8। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स।
ठीक है, 100 मार्क का होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। टोटल 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क, एंड शुड बी कंप्लीटेड इन 120 मिनट्स। 100 सवाल के जवाब आपको 120 मिनट में देना है। जो आता है वो मार्क करना है, जो नहीं आता वो मार्क नहीं करना। द रीजन फॉर दैट इज यू हैव नेगेटिव मार्किंग्स इन दिस, सो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% ऑफ द मार्क्स असाइन टू ईच क्वेश्चन। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो। And the passing score for the examination is 60%. तो 60% पास है। अच्छा, आप में से मैक्सिमम लोगों को ये टफ लग रहा होगा। व्हाट डू यू थिंक? वैभव, इज इट टफ? वैभव मना कर रहा है। ऋचा, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ठीक है। व्हाट अबाउट लक्ष्मी? लक्ष्मी तो एकदम कॉन्फिडेंट है कि मैं तो ये एग्जाम पास कर ही लूंगी क्योंकि मेरा नाम ही लक्ष्मी है। ठीक है। नाउ वन मोर थिंग विच आई हैव टू ऐड, अगर आप ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पास करते हैं तो 3 साल की वैलिडिटी सर्टिफिकेट की होती है। 3 साल बाद आपको फिर से ये एग्जाम देना होगा। 80% ऑफ द पोर्शन रिमेन सेम, 20% जो चेंजेस आए हैं उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। आप सबको मालूम है वक्त बहुत रैपिडली बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली बदल रहा है, ट्रेडिंग सिस्टम बहुत रैपिडली बदल रहा है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होंगे। तो दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी इज फॉर 3 इयर्स। 3 साल बाद आपको फिर से ये एग्जाम देना होगा, लेकिन बेटा ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। अगर आपने इस बार अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपको सिर्फ आगे पढ़ाई किस चीज की करनी है। अब जब आप नोट्स देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार मैक्सिमम चीज 80% तो रिपीटेड है, सिर्फ 20% जो चेंजेस हुए 3 साल में वो वही सिर्फ आपको पढ़ना है, क्योंकि बाकी तो आपको आता है। जो चेंजेस हैं वही आपको पढ़ना है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक, ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम मतलब आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप में से कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पायल आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गए हो? नहीं। साची, लक्ष्मी, ओके। तो ये एग्जाम देने के लिए आप अपने हिसाब से ग्रुप बना लीजिए, सब एक साथ जाइए, तो इट विल बी अ पिकनिक सॉर्ट ऑफ थिंग। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको जाना पड़ेगा, वहां आप एग्जाम दे सकते हो। याद रखना इसके जो स्लॉट्स हैं, SLOTS स्लॉट्स, इसका एग्जाम स्लॉट्स में होता है। यू हैव टू चूज योर डेट एंड टाइम। वक्त भी आपका होगा, समय भी आपका होगा, और पेपर भी आपका होगा। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। आप चूज करोगे किस दिन आपको एग्जाम देना है, कौन से टाइम पे एग्जाम देना है। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव रहेगा, वहां पे एक डेस्कटॉप रखा होगा, डेस्कटॉप लाइन से रखे होंगे, आपके आजू बाजू में भी लोग होंगे। याद रखना कोई भी कॉपी नहीं करना। द रीजन फॉर दैट इज हर एक के क्वेश्चन सेपरेट होते हैं। नहीं तो आप बोलोगे अरे यार बाजू वाला है फर्स्ट का आंसर, क्योंकि हम लोग ने अभी कोरोना के काल में देखा है फर्स्ट का आंसर 4D मार्क कर दिया। तो यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा। द रीजन फॉर दैट इज यहाँ जितने लोग इक्विटी डेरिवेटिव, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके बाजू में जो बैठे हैं वो इक्विटी डेरिवेटिव्स वाले हो सकता है म्यूचुअल फंड वाले हो सकता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स हो सकता है करेंसी डेरिवेटिव्स हो। देयर आर n नंबर ऑफ एग्जाम्स। मैंने जैसे आपको आज ही बताया था कि दीज आर सीरीज, और सीरीज में हमारा पहला टारगेट है इक्विटी डेरिवेटिव्स। हो सकता है इसके बाद हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स देखें, उसके बाद हम लोग करेंसी डेरिवेटिव्स देखें। देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। तो यहां पे फिलहाल हम लोग देख रहे हैं दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव्स। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यू हैव टू मार्क ABCD। जब मैं पढ़ाऊंगा बेटा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, तो क्वेश्चन कर सकते हैं या किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। आपको ध्यान एक ही चीज रखना है, जो आता है वो टिक करना है, जो नहीं आता है क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है कि यार C और D में से एक है, तो आप, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट। उधर स्टार मार्क भी आता है। स्टार मार्क मतलब
कि ये क्वेश्चन आप बाद में फिर से देखना चाहोगे, एक बार कंप्लीट हो गया तो आपका पहला इंटेंशन क्या होना चाहिए, पूरे 100 क्वेश्चंस एक बार देख लें, जो आ रहा है वो मार्क कर दें, क्योंकि 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस देखना है। अगर आप स्लोली देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर मेरे जैसा स्टूडेंट है या मैं जो टेक्निक इस्तेमाल करता हूं, मैं वही टेक्निक इस्तेमाल करता हूं जो 100% है। मैं क्वेश्चन फटाफट एक एक करके देखते जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, नहीं आता है, डोंट वेस्ट टाइम। सेकंड क्वेश्चन आता है, डी, ठीक है, अब मेरे को कंफर्म है ना ये डी है, तभी मैं मार्क कर रहा हूं, यस और नो। क्या करूंगा, एक ब्लैंक पेपर भी देते हैं, उधर मैं लिख लूंगा 1, या फिर मैं उसमें पहले से लिख के रखूंगा 1 2 3 अप टू 100, जो कॉन्फिडेंट है मेरे को, ठीक है। सेकंड वाला डी था, थर्ड वाला सी है, फोर्थ वाला नहीं आ रहा है, फिफ्थ वाला ए है। तो जो मेरे करेक्ट आंसर है वो मैं मार्क करते जा रहा हूं, उधर कैंसिल करते जा रहा हूं कि सेकंड का आंसर करेक्ट है, थर्ड का आंसर करेक्ट है, फिफ्थ का आंसर करेक्ट है। जब मेरे पूरे 100 हो जाएंगे तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि मेरे कितने आंसर्स करेक्ट है, जो 100% है। अरे यार 58 क्वेश्चंस ही हुए, 58 आंसर्स मेरे राइट है, क्योंकि मैं उधर क्लिक कर रहा था, एट द सेम टाइम में मार्क कर रहा था। अभी भी मैं फेल हूं क्योंकि 60% इज पासिंग। फिर मैं उन क्वेश्चंस को देखना ज्यादा प्रेफर करूंगा जिसमें मेरे को डबल डबल लग रहा था कि सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। फिर मैं उन क्वेश्चन, फिर वापस से सब क्वेश्चन देख के कोई मतलब है क्या, नहीं। तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे भी जा सकते हो कि जो क्वेश्चन आपका छूट गया, डायरेक्ट क्लिक करोगे, क्योंकि स्टार मार्क करके एक पैनल आएगा, मतलब जो आपका स्क्रीन रहेगा ना उसके सामने एक पैनल रहेगा साइड में, 1 to 100, जितना आपने आंसर्स मार्क कर दिए वो ग्रीन हो जाएंगे अपने आप, कुछ स्टार्स रहेंगे, ठीक है, और कुछ रेड रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो मार्क किया वो देख लेना है, फिर जो ग्रीन, ग्रीन के अलावा जो स्टार मार्क है जहां मैं कंफ्यूज हूं वो क्वेश्चंस देखूंगा, और फिर आखिरी में रेड। लेकिन हर एक क्वेश्चन मार्क करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका एक आंसर रॉन्ग हुआ आपके 1.25 मार्क्स कट हो गए। 1 मार्क का क्वेश्चन प्लस 0.25 इज योर पेनल्टी। इज इट क्लियर? अब पहले मेरे को ये बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जस्ट रेज योर हैंड्स। सो आई अज्यूम देयर आर नो क्वेरीज, क्योंकि किसी ने भी अपना डिजिटल हैंड रेज नहीं किया है। चलिए आगे बढ़े। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप सब लोग अपने, अगर वीडियोस ऑन करेंगे, आज नहीं कर पा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर से अगर आप लोग ने देखा होगा कि अब तक मैंने जिनके नाम लिए हैं ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, क्योंकि मैं उनको देख पा रहा हूं और उनके रिएक्शन समझ में आ रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी समझ में आता है कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं। अब जो स्टूडेंट्स ने अपने वीडियोस ऑफ करके रखे हैं उनको उनके बारे में फाइंड आउट करना इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इट इज नॉट कंपलसरी बट इट इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट, कि अगर आप अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा करिकुलम से स्टार्ट कर लेते हैं। आज से शुरुआत थोड़ी सी फर्स्ट चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। उम्मीद है आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटबुक होगा या पेज भी होगा, तो आप फिलहाल लिख लीजिए और जब नोटबुक बनाएंगे तो उसमें आप लिख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 इज बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स मतलब क्या, लेट अस सी। डेरिवेटिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स? स्क्रीन चेंज हुआ, प्लीज लेट मी नो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले क्या बोल रहा है देखो, अब सब लोग प्लीज सुनिएगा। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा ना बेसिक्स और बता देता हूं, क्योंकि है ना मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि है ना स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है कि व्हाट इज इक्विटी मार्केट एंड व्हाट इज डेरिवेटिव्स मार्केट। मैं आपको बता रहा हूं,
दो मार्केट है बेटा, एक इक्विटी मार्केट जिसको हम कैश मार्केट बोलते हैं, और दूसरा है डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं. अगेन प्लीज नोट इट डाउन, देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट. शेयर मार्केट में दो प्रकार हैं, देयर आर टू टाइप्स. वन इज इक्विटी मार्केट और कैश सेगमेंट. इक्विटी मार्केट और कैश सेगमेंट. And the second one is derivative market or futures and options. Derivatives market or futures and options. Now before starting basics of derivatives, ये दोनों का difference मैं आपको बताना चाहूंगा. Now what is the basic difference between the two? अब दोनों का difference ये है बेटा, सपोजिटली मुझे मनीष राय को शेयर्स खरीदना है, ओनली शेयर्स. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड फॉर परचेसिंग अ शेयर. मैं जाता हूं एनएससी या बीएससी में, वहां से मैं रिलायंस के 2 शेयर्स खरीदता हूं, 2 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के खरीदता हूं, 1 शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खरीदता हूं. ये मैंने शेयर्स खरीदे. यहां मैं 1 शेयर भी खरीद सकता हूं, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, एनी नंबर, एनी फिगर. मैंने ऐसे कई क्लाइंट्स को देखा है, मेरे कई क्लाइंट्स हैं. मनीष भाई काम करो, रिलायंस खरीदना है. हाँ सर, कितना खरीदो? 21 शेयर खरीदो, 21. 11 शेयर खरीदो, 51 शेयर्स खरीदो, 101 शेयर खरीदो. तो ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है. कई ऐसे भी मेरे क्लाइंट थे जो बोलते थे कि भाई मेरा है ना 9 नंबर सबसे अच्छा है, पॉजिटिव. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9s में खरीदते थे उन लोग शेयर्स. भाई 9 शेयर खरीदो, 18 शेयर खरीदो, 27 शेयर्स खरीदो, 36 शेयर्स खरीदो, मतलब 9 का टेबल पढ़ो. समझ में आ रहा है? तो इक्विटी मार्केट या कैश सेगमेंट ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, कितने भी शेयर्स खरीद सकते हो. इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है. आप इसको बेचना चाहे बेच सकते हैं, नहीं बेचना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो. सो देयर इज अ क्वेरी फ्रॉम वैभव. लेट अस सी. यस वैभव. So what's the difference between the number of shares or the lots? अभी मैं उस पे आया ही नहीं, ठीक है. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. नाउ हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज इक्विटी और कैश सेगमेंट? ये कैश सेगमेंट है जहां आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर खरीद सकते हो. आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने शेयर्स खरीदा है, अपने बच्चों की शादी में दूंगा. आई हैव 2 डॉटर्स, ठीक है. तो आई विल बी सेलिंग व्हेन आफ्टर 10 years, 15 years, जब उनकी शादी का समय होगा तब मैं बेचूंगा. तो मतलब कैश सेगमेंट में आप कितने भी शेयर्स खरीद सकते हो, कितने भी समय के लिए, कितने भी टाइम के लिए खरीद सकते हो. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव जैसे इन्होंने पहले लाइन में बोला है, डेरिवेटिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट. अब इट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. यहां सब चीज स्टैंडर्डाइज्ड है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइज्ड? यहां आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर नहीं खरीद सकते. यहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लिमिट्स बना के रखी है. हर एक शेयर के अपने अपने लॉट साइज है, जो वैभव अभी बता रहा था या उसकी जो क्वेरी थी. तो यहां पे जो डेरिवेटिव है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग अ लॉट. LOT, लॉट. लॉट मींस स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स. जो कौन डिसाइड करेगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा. फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मैं रियल मार्केट की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के, अज्यूम करो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज पर शेयर. प्राइस 1000 रुपीज. और रिलायंस कंपनी का एक लॉट, 1 लॉट, LOT, एक लॉट में 1000 शेयर्स है. अब मेरे को बताओ कि 1000 शेयर्स का एक लॉट है और एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये कॉन्ट्रैक्ट, ये डेरिवेटिव कितने रुपए का हुआ?
यस वैभव, वैभव Sir, 1 lakh rupees. हट पगले, रुलाएगा, 1 लाख नहीं होता। Sir, 100. हाँ, there is no 100. So how many lots are we going to purchase? 1 lot of 1000 shares into 1000 rupees. Anyone can raise their hands if they want, they know the answer. Sir, 10 lakhs. Okay, that's very fine. Sachi, is it correct? Okay, that's very fine. अब मेरे को बताइए कि यहां डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कैश मार्केट एंड अ डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट में 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर कभी भी खरीद सकते हो, कितने भी टाइम। बट इन डेरिवेटिव्स मार्केट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग अ लॉट। लॉट मींस एक पर्टिकुलर लॉट में नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उतने ही शेयर्स आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब मैं ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये नहीं बोल सकता कि यार 1000 शेयर्स मेरे को नहीं खरीदना है, मेरे को सिर्फ 500 शेयर खरीदना है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलेगा, सॉरी आपके लिए कैश सेगमेंट है, जाके कैश सेगमेंट में खरीदो। डोंट गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपकी जगह नहीं है। अब मेरे को आगे बढ़ना है और आगे बता रहा हूं, अच्छे से सुनना, कि जो भी डेरिवेटिव, ये लिखा नहीं है इधर, ये चीज लिखी नहीं है इधर, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको कहीं अगर लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तक मैंने सिर्फ 3 ही वर्ड्स बोले हैं, आप देखो, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उधर ही रुक गया मैं, क्योंकि इसको बेटा जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब तक आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। अब डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे। हर महीने के लास्ट थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो साची मुझे बताएगी कि अप्रैल मंथ का लास्ट थर्सडे कब है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए लास्ट थर्सडे। अरे वैभव कहां जा रहा है? यस साची। सर अप्रैल मंथ का लास्ट थर्सडे जी। तो वो लास्ट वीक में होगा। अरे हट पगली, मैं बताऊं टुडे इज हाँ। वेडनेसडे एंड टुमारो इज द लास्ट थर्सडे। अच्छा, तो सर 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं ना, तो लास्ट हर एक वीक थर्सडे, का लास्ट मींस महीने का आखिरी गुरुवार, ठीक है? ओके। हाँ। अब सब लोग अच्छे से सुनिएगा, हर महीने के लास्ट थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। मैं कभी भी खरीद सकता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आज अज्यूम करो कि ये इवनिंग टाइम नहीं है, मॉर्निंग टाइम है, जब मार्केट खुला हुआ है, शेयर मार्केट खुला हुआ है। मैं आज बेच के कल भी बेच सकता हूं, आज खरीद के कल भी बेच सकता हूं। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में अगर हम लोग फ्यूचर्स की बात करें, अच्छे से सुनना बेटा, डेरिवेटिव मार्केट में 2 हैं, जैसे आप लोगों ने लिखा है, इट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, लास्ट थर्सडे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। महीने का आखिरी गुरुवार, महीने का लास्ट थर्सडे आपका कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर। इज इट क्लियर? ये मैं कभी भी खरीद सकता हूं। प्लस अब मैं थोड़ा सा और आगे बता रहा हूं, ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई नहीं है बेटा, किसी को क्वेरीज रहेगा प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स इंस्टेड ऑफ चैटिंग, क्योंकि कई बार चैटिंग के ऊपर मेरा ध्यान नहीं रहता है। अगर डिजिटल हैंड्स आपने रेज किया तो एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा, ठीक है? ओके, जैसे साची ने अभी अभी हैंड्स रेज किया। यस साची। सर जैसे आपने कहा कि डेरिवेटिव मार्केट्स में लॉट्स बेचे जाते हैं, तो लॉट्स वो शेयर्स के होते हैं, तो हम उसे स्टॉक्स भी कह सकते हैं। यस। अब है ना, डेरिवेटिव में स्टॉक नहीं हो सकता, क्योंकि डेरिवेटिव बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है? वो क्यों बड़ा कंसेप्ट है ये मैं आगे इसी स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है? हैंड्स नीचे कर लो फिलहाल। स्टॉक्स
बोल सकते हैं लेकिन बोला नहीं जाता है जहां तक शेयर मार्केट स्टॉक्स हम लोग बोलते हैं, खासकर स्पेसिफिकली इन कैश सेगमेंट। आज मैंने रिलायंस का 10 शेयर खरीदा, स्टॉक ऑफ 10 रिलायंस शेयर्स। आज मैंने HDFC बैंक के 12 शेयर्स खरीदे, अ स्टॉक ऑफ 12 शेयर्स आई हैव परचेस्ड ऑफ HDFC बैंक। ठीक है, अब डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा हूं, फिर से बहुत अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश कर रहा। हर एक डेरिवेटिव, वेदर इट इज अ फ्यूचर और अ ऑप्शन, कब खत्म होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, अगेन जो यहां लिखी हुई नहीं है, लेकिन स्टार्ट करने के समय आपको बताना जरूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में, आज याद रखना, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? कल, दैट इज 28th ऑफ अप्रैल, बिकॉज 28th ऑफ अप्रैल इज द लास्ट थर्सडे। आज की डेट में मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे। हाउ मेनी? 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एंड जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन। मतलब पहले अच्छे से सुन लो, नहीं समझ में आया तो क्वेरीज पूछना। मतलब मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं आज खरीद सकता हूं, जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं आज खरीद सकता हूं। मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? लास्ट थर्सडे ऑफ मई। जून मंथ का कब खत्म होगा? लास्ट थर्सडे ऑफ जून। इतना समझ में आ गया? अब अच्छे से सुनना बेटा, आज दैट इज 27th ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। यस, कल दैट इज 28th ऑफ अप्रैल, विच इज द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट है किसकी? अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट की, अप्रैल वाले डेरिवेटिव की। बराबर? अब मेरे को बताइए, कल दैट इज 28 को 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, अप्रैल वाला भी ओपन है, कल आखिरी दिन है, मैं कल की बात कर रहा हूं 28 की। मई वाला भी ओपन है, जून वाला भी ओपन है। जैसे ही 29th आएगा, 29th ऑफ अप्रैल, अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। मई वाला अवेलेबल है, जून वाला अवेलेबल है और जुलाई ओपन हो जाएगा। 27th April, that is tomorrow, is the last day or expiry day of April contract. लेकिन उसके दूसरे दिन अप्रैल को तो खत्म हो गया, फिर मई वाला कॉन्ट्रैक्ट बचा, जून वाला कॉन्ट्रैक्ट बता और जुलाई वाला ओपन हो जाएगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे? 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको हरदम अवेलेबल होंगे। फिर मई का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन मई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फ्राइडे के दिन अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा, एंड इट गोज ऑन। इसको आप अपनी भाषा में नोट्स बना के रख लीजिए, जिस भाषा में आपको याद रहे आज से 1 महीने बाद कि अच्छा दिस इज द थिंग। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे को खत्म हो जाता है और उसी के दूसरे दिन अगले महीने का, दैट इज 3 महीने के बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। तो जस्ट गिव एन एग्जांपल, उसके नीचे एग्जांपल लिख लो, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया। 27th April is the last Thursday of April. Sorry, 28th April is the last Thursday of the April month. On 29th, April contract will expire. Had been expired on 28th itself. On 29th, मई वाला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जून वाला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और जुलाई वाला ओपन हो जाएगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अवेलेबल टू बाय और सेल। Richa completed. Vaibhav completed. Good.
साची completed? Payal? What about Jiten? Diksha? That's very fine. चलिए अब भी मैं फिर से आगे नहीं बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, चलेगा ना? बेसिक्स और क्लियर कर लेते हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? अज्यूम करिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अज्यूम करिए आज 29th है, टुडे इज 29th ऑफ अप्रैल. क्या अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूं, हां या नहीं? क्योंकि अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट तो 28th ऑफ अप्रैल को खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया. अब 29th के दिन मैंने लिया, मेरे को ऐसा लग रहा है, हम लोग एग्जांपल सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का दे रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए. अज्यूम करो मैं हूं, दैट इज मनीष राय, और मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा रिलायंस का भाव क्या चल रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1000, याद है आपको? और लॉट साइज क्या है? लॉट साइज इज 1000 शेयर्स. ठीक, अब मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, या मैंने एनालिसिस किया, या मैंने किसी ब्रोकर की बात सुनी, या रिलायंस भागने वाला है, 1000 रुपीज से ये 1020 रुपीज हो जाएगा, 20 रुपया बढ़ेगा. ठीक, मैंने 29th को एक लॉट खरीद लिया, 1000 शेयर्स का वन लॉट एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज. टोटल अमाउंट कम्स टू 10 lakhs. ठीक, अब बेटा अच्छे से सुनना और लिख लेना. जो ब्रोकर है, फॉर एग्जाम्पल एंजल ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग में मेरा अकाउंट है, मैं एंजल ब्रोकिंग में फोन किया ऑन 29th मॉर्निंग. 29th मॉर्निंग को मैंने अपने ब्रोकर को फोन करके पूछा, भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का मे वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है? बोलता साहब 1000 रुपीज चल रहा है. मैं बोलता हूं ठीक है, एक काम कर, एक लॉट खरीद ले. मेरा ब्रोकर क्या बोलेगा? बोलेगा सर डेरिवेटिव खरीदने के लिए आपको एडवांस में पैसे जमा करना पड़ता है, पहले पैसे जमा करो फिर आपका ऑर्डर लेंगे. तो मैं उसको पूछता हूं, ओके भाई कितना पैसे दूं? एज पर रूल्स 10% इज रिक्वायर्ड. तो 10 लाख रुपए का 10% कम्स टू 1 लाख. तो मेरे को लाख रुपए उसके अकाउंट में, ब्रोकर मतलब मेरे अकाउंट में, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे, ब्रोकर को देने पड़ेंगे कि भाई ये लाख रुपए है, अभी अभी मैंने अपने मोबाइल से ट्रांसफर किया है, चेक कर लो, लाख रुपए दे दिए, अब मेरा खरीदो. याद रखना, दिस 1 lakh इज टर्म्ड एज मार्जिन मनी. दिस 1 लाख जो मैंने उसको पे किया, दैट इज टर्म्ड एज मार्जिन मनी, MARGIN. तो ये मार्जिन मनी कहलाता है. बिना मार्जिन मनी के कोई भी बंदा डेरिवेटिव्स में कोई चीज नहीं खरीद सकता. इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? तो मैंने लाख रुपए जमा किए, ठीक, और शेयर्स खरीद लिए, दैट इज लॉट खरीद लिया, नॉट शेयर्स, लॉट खरीद लिया डेरिवेटिव मार्केट में. अब ऑन द अदर हैंड पायल इज देयर. पायल अज्यूम करो कि मुंबई में है, या दिल्ली में है, या दुबई में है, और पायल, अच्छे से सुनना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार भागेगा. हो सकता है पायल को किसी और ने उसको गाइड किया. पायल मालूम है क्या तेरे को, मे वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना 980 रुपए हो जाएगा, 1000 रुपए चल रहा है, डायरेक्ट 20 रुपए नीचे. तो पायल क्या करेगी? पायल सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगी. मनीष राय ने बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, मनीष राय ने बाय किया था डेरिवेटिव को. पायल क्या करेगी? पायल सेल करेगी डेरिवेटिव को, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. आप खरीद रहे हो तो आपको बेचना पड़ेगा, और आप बेच रहे हो तो आपको खरीदना पड़ेगा. ठीक, अब अच्छे से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं. मई में, इन द मंथ ऑफ मे, आफ्टर 10 days, 10 दिन बाद
रिलायंस का डेरिवेटिव का भाव चल रहा है 1030 रुपीज। मैं मनीष राय 1000 रुपए वाला डेरिवेटिव खरीदा था, 1000 रुपए में खरीदा था, तो मेरे को बेचना है। 1030 हो गया, मेरा प्रॉफिट है या लॉस? 1000 में खरीदा था, 1030 में बेचूंगा, तो इट इज अ प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज पर शेयर इनटू 1000 शेयर्स, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपीज। ठीक, ओके। एट द सेम टाइम पायल है, पायल ने देखा अरे 1000 रुपए का 1010 हो गया, 1020 हो गया। अब पायल को लॉस होने लग गया, यार 20 रुपए का लॉस है, पायल ने बेच दिया, सॉरी बेचा था, अब खरीदना पड़ेगा उसको, बिकॉज शी वॉज अ सेलर। उसने डेरिवेटिव बेचा था, 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या क्या बोला, भाई 1000 रुपए का मैं बेच रही हूं, 1000 रुपए में बेचा, अब रेट हो गया 1020 रुपए, तो पायल को प्रॉफिट है या लॉस? बेचा 1000 रुपए में, खरीदा 1020 में। 1020 में खरीदा है और बेचा 1000 रुपए में, प्रॉफिट है या लॉस? लॉस ऑफ 20 रुपीज पर शेयर इनटू 1000 शेयर्स का लॉट, तो हर लॉस इज 20,000 रुपीज। मेरे को बताइए, वैभव ने भी खरीदा है, लेकिन वैभव ने क्या बोला, नहीं आई विल वेट 10 दिन बाद, मतलब 29 के बाद 10 दिन, 9th ऑफ मे। कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? मई के लास्ट थर्सडे में, तो मैं रुकूंगा, आराम से देखेंगे, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, आई विल बी वेटिंग। तो भाई वो कब तक वेट कर सकता है? लास्ट थर्सडे। कब तक वेट कर सकता है? लास्ट थर्सडे ऑफ मई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मई का है। अब अज्यूम करो लास्ट थर्सडे, वैभव से ही पूछते हैं, वैभव यस सर। ओके, वैभव मेरे को बताओ लास्ट थर्सडे ऑफ मई कब है? एक सेकेंड सर। हाँ दिया, जरूरत नहीं है, बोलो बोलो। सर 26 में। 26 में इज द लास्ट। अज्यूम करो कि 26 तारीख तक वैभव ने बेचा ही नहीं, खरीदा है लेकिन बेचा ही नहीं। याद रखना, जो एक्सपायरी डेट है, अच्छे से सुनना बेटा, जो एक्सपायरी डेट है उस दिन अपने आप बिक जाएगा। अगर इसने नहीं भी बेचा तो बिक जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। खरीदा है तो बेचना पड़ेगा, बेचा है तो खरीदना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो जो एक्सपायरी डेट का जो प्राइस रहेगा उस प्राइस पे वो अपने आप बिक जाएगा, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। खरीदा है बेचना पड़ेगा, बेचा है खरीदना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा इसमें। देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। तो यहां राइट प्लस ऑब्लिगेशन दोनों है। आपका अधिकार है, राइट मींस आपका अधिकार, राइट। तो फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपका राइट भी है और आपका ऑब्लिगेशन भी है। खरीदा है तो बेचना पड़ेगा, बेचा है तो खरीदना पड़ेगा। अपने आप चीजें स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। कोई भी पोजीशन थर्सडे के दिन बचेगी नहीं। खरीदने वाले की अपने आप बिक जाएगी, बेचने वाले की अपने आप खरीद लेगी। बराबर है, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, खरीदा है तो बेचना पड़ेगा, बेचा है तो खरीदना पड़ेगा। फिर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी रहेगा वो आपका है। क्या ये समझ में आया? एनी क्वेरीज? नहीं? चलिए अब मैं रीड कर रहा हूं कंसेप्ट आगे। अब तक हम लोग सिर्फ 3 वर्ड्स देखा था। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिक्स थे वो क्लियर हुए। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट।
अब ये डेरिवेटिव किसी भी चीज का हो सकता है, डेरिवेटिव किसी भी चीज का हो सकता है, क्या क्या चीज का हो सकता है वो देखेंगे। तो डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of some other asset known as underlying asset. Underlying asset, underlying asset लिख लो, underlying asset. Underlying asset. Now what do you mean by underlying asset? अच्छे से सुनना, अंडरलाइंग एसेट लिखने के बाद सिर्फ स्क्रीन देखिएगा। डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव्स है, आर बेस्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब अंडरलाइंग एसेट मतलब क्या, अच्छे से सुनना बेटा। दीज इंक्लूड मेटल्स सच एज गोल्ड। अब मेरे को बताओ, गोल्ड, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है और कम होता है या नहीं? ठीक है। अब आपने एक और मार्केट सुना होगा, कमोडिटी मार्केट। सुना है कमोडिटी मार्केट के बारे में? कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट जहां आप कमोडिटी बाय और सेल कर सकते हो। अगेन इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे शेयर मार्केट है वैसे ही कमोडिटी मार्केट भी है। ठीक है। अब अच्छे से सुनना, दो मार्केट्स हैं, एक जो नेचुरल मार्केट है गोल्ड मार्केट, और एक डेरिवेटिव मार्केट है। अब मेरे को बताना, मैं अपने ब्रोकर के पास गया, बेटा अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना, नहीं समझा तो प्लीज पूछना। मैं जाता हूं एंजल ब्रोकिंग में और एंजल ब्रोकिंग वाले को बोलता हूं, भाई गोल्ड का डेरिवेटिव बताना, मई वाला गोल्ड का डेरिवेटिव बताना फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है। अब अच्छे से सुनना बेटा, गोल्ड का प्राइस फिलहाल चल रहा है 50,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स, 50,000 रुपए तोला। 1 किलो कितने का? रेज योर हैंड। 50,000 रुपए 10 ग्राम का गोल्ड चल रहा है, 1 किलो कितने का? रेज योर हैंड्स। है कोई जो बताएगा? यस, एनीवन? चलिए, वैभव ने हैंड्स रेज किया है। जितेन, जितेन को हम लोग फिलहाल मौका देते हैं एक बार। यस जितेन। 5 करोड़। 5 करोड़। साची से भी पूछ लेते हैं। यस साची। सर सेम आंसर, 5 करोड़। ओके, रिचा को भी हम थोड़ा सा एक मौका देना चाहेंगे। यस रिचा। सर मोर देन 5 करोड़। मोर देन 5 करोड़। ठीक है, जरा आप लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा। $50,000 is for 10 grams, तो 50,000 100 ग्राम्स का कितना होगा? 50,000 इंटू 10 कितना हुआ? हाँ वैभव बताओ कितना हुआ? 5 lakhs. गुड। अब 100 ग्राम्स का अगर 5 लाख है, 50 lakhs. यस दैट्स वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच। 50 लाख रुपए का माल है एक किलो सोना। ठीक है। तो मैं, अच्छे से सुनना बेटा, मैं एंजल ब्रोकिंग में गया, एंजल ब्रोकिंग में उसको बोला भाई गोल्ड का मे वाला कॉन्ट्रैक्ट कितना चल रहा है? बोलता 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स, 50 लाख का माल है। अब मेरे को दीक्षा बताएगी। दीक्षा, यस सर। 50 लाख रुपए का माल है, मेरे को ये बताइए आप कि मेरे को मार्जिन कितना रखना पड़ेगा? मार्जिन मनी। 10%। हाँ, तो 50 लाख का 10% बेटा कितना हुआ? 5,000। हाँ 5,000। नहीं रे बेटा, 50 लाख लिखो और एक जीरो कम कर दो। हाउ मच?
5 lakhs. यस, वेरी गुड। तो एंजल ब्रोकिंग में जैसे आप सबको मालूम है, एंजल ब्रोकिंग गया और एंजल ब्रोकिंग में बोला भाई एक काम कर, गोल्ड खरीद ले फटाफट 1 किलो। सामने वाला एक ही चीज बोलेगा मेरे को, भाई मार्जिन मनी दे पहले। मैं ऑन द स्पॉट अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, 5 लाख रुपीस दे दिया, ठीक है, 5 लाख रुपए मैंने दे दिए। अब मैं बोल रहा हूं भाई खरीद चल, बोल रहा था ना पैसे दिए, खरीद, देख अकाउंट में आया क्या, हाँ सर आ गया, खरीद। अब अच्छे से सुनना बेटा, उसने आज, अभी भी आपको मालूम है कमोडिटी मार्केट अभी भी चल रहा है, इस टाइम पे 8:15 बज रहे हैं, अभी भी चल रहा है, रात में चलता है। और देखो वैभव बता रहा है 11 बजे तक चलता है। चलो ठीक है, मेरे को बताओ, मैंने अभी खरीदा, 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और मैंने 1 किलो गोल्ड खरीद लिया। अब मेरे को बताओ, ये जो डेरिवेटिव खरीदा है मैंने, डेरिवेटिव किसका है, शेयर्स का है या गोल्ड का है? तो डेरिवेटिव गोल्ड का है। अब इसका प्राइस ऊपर जाएगा गोल्ड का या नीचे जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन गोल्ड का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, दैट इज, यहां गोल्ड मतलब हमारा जो नॉर्मल मार्केट है उसमें गोल्ड का प्राइस, तो यहां अंडरलाइंग एसेट मतलब क्या, अंडरलाइंग एसेट मतलब गोल्ड। देयर आर टू थिंग्स, वन इज डेरिवेटिव ऑफ गोल्ड एंड वन इज गोल्ड। तो डेरिवेटिव ऑफ गोल्ड का प्राइस कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द अंडरलाइंग एसेट, एंड गोल्ड का डेरिवेटिव का अंडरलाइंग एसेट कौन है? गोल्ड। तो गोल्ड अगर बढ़ गया तो मेरा डेरिवेटिव का प्राइस बढ़ जाएगा। गोल्ड का प्राइस, मार्केट में गोल्ड का प्राइस कम हो गया तो डेरिवेटिव का प्राइस कम हो जाएगा। तो यहां इन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो भाई डेरिवेटिव का प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अंडरलाइंग एसेट। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे से सुनना, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं जो हमने इसके पहले एग्जांपल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेरिवेटिव कितने का था? 10 लाख, 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस में से लाख रुपए देके मैंने रिलायंस का डेरिवेटिव खरीदा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेरिवेटिव खरीदा। मेरे को बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेरिवेटिव का अंडरलाइंग एसेट क्या है? वैभव बताओ। Sir, I'm not sure, but the share price of Reliance Industries. यस, दैट इज करेक्ट। तो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो डेरिवेटिव उसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा? अंडरलाइंग एसेट, दैट इज रिलायंस का शेयर का भाव। कैश सेगमेंट में रिलायंस क्या चल रहा है? कैश सेगमेंट में रिलायंस बढ़ गया तो मेरे डेरिवेटिव का भाव भी बढ़ जाएगा। कैश सेगमेंट में रिलायंस का भाव कम हो गया तो मेरे डेरिवेटिव का भाव भी कम हो जाएगा। तो भाई मार्केट, कैश मार्केट में क्या चल रहा है वो डिसाइड करता है, दैट इज टर्म्ड एज अंडरलाइंग एसेट। तो डेरिवेटिव का प्राइस, डेरिवेटिव की वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अब ये जितनी चीजें हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकता है? तो अंडरलाइंग एसेट गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक, निकल, टिन, लेड एटसेट्रा, ये सब मेटल्स है। एनर्जी रिसोर्सेज, इसका भी डेरिवेटिव होता है, जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स, क्रैक्स, ये सब रिलेटेड है विद ऑयल। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये सब का भी डेरिवेटिव होता है। एग्रीकल्चर, व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस, इनका भी डेरिवेटिव होता है। और आखिरी में फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, इनका भी डेरिवेटिव होता है। मेरे को बताइए, अच्छे से सुनना बेटा, अच्छे से। मैंने अपने ब्रोकर को, एंजल ब्रोकिंग को फोन किया और बोला कि भाई डॉलर क्या चल रहा है, डॉलर अज्यूम करो, डॉलर बोलता है सर 1000 रुपए चल रहा है, अज्यूम करो, जस्ट एन अजम्पशन। डॉलर का भाव क्या चल रहा है? 100 रुपए पकड़ो, 1000 रुपए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 100 रुपए पकड़ो। एक अमेरिकन डॉलर 100 रुपीज चल रहा है, ठीक। 1000, अच्छे से सुनना, 1000 का लॉट है, $1000 का लॉट है।
1000 इंटू 100 कितना हुआ? लाख रुपीस, लाख रुपए, 1 लाख रुपए। मैं बोलता हूं यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि है ना डॉलर नीचे जाएगा, 100 रुपए चल रहा है ना, नीचे आएगा यार डॉलर। मैं क्या करूंगा? सेल कर दे, 1 लॉट सेल कर दे। मैंने उसका जो भी मार्जिन मनी था वो भर दिया। अच्छे से सुनना बेटा, ठीक है? मैं साची से पूछूंगा क्वेश्चन का आंसर। साची, आर यू रेडी? यस सर। अब मेरे को बताओ, मैंने 1 लॉट डॉलर्स का बेच दिया, मे का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये लास्ट थर्सडे ऑफ मे तक चलेगा आराम से। हाँ। ओके, 1 लॉट 1000 शेयर का इंटू 100 रुपए पर डॉलर, टोटल अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस। अब अच्छे से सुनना, रशिया ने एक न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के ऊपर डाल दिया, अच्छा। तो डॉलर का भाव बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हो सकता है वो 100 रुपीज से 80 रुपीज आ जाए। हाँ। बराबर है? तो यहां पे 100 रुपीज से 80 रुपीज कहां हुआ? वो डेरिवेटिव में या ओरिजिनल मार्केट में? ओरिजिनल मार्केट में। तो जो डॉलर का डेरिवेटिव है उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? डॉलर का अंडरलाइंग एसेट उसका मार्केट प्राइस जितना चल रहा होगा वो। मार्केट प्राइस ऑफ डॉलर। तो गोल्ड का अंडरलाइंग एसेट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ गोल्ड का अंडरलाइंग एसेट इज गोल्ड इन द मार्केट। गोल्ड। ठीक है। नेचुरल गैस का डेरिवेटिव का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? नेचुरल गैस का प्राइस, मार्केट में क्या चल रहा है। Yes. तो क्या ये कंसेप्ट बेटा सबको समझ में आया कि डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका प्राइस और वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द अंडरलाइंग एसेट, द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो क्या ये पूरा कंसेप्ट बेटा, ये पूरा स्लाइड आपको समझ में आया क्या? इसमें अगर किसी को क्वेरीज है, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड है, अगर किसी को क्वेरीज है प्लस प्लीज रेज योर हैंड्स, डिजिटल हैंड्स। नहीं? अच्छा, आप सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं? अगर आप सबके पास नोट्स अवेलेबल है तो मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड चेंज हुआ, डेरिवेटिव्स मार्केट हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। द रीजन फॉर दैट इज ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम लोग नहीं समझा सकते। अगर मेरे से आज कोई पूछेगा कि मनीष सर बताइए गांधी जी कैसे मरे, तो मैं बोलूंगा भाई उसको नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारी। क्या मैं ये बोल सकता हूं अटैक आ गया था मर गए? तो हिस्ट्री कभी चेंज हो सकती है क्या? तो बेटा ये जितने हिस्ट्री है ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कैसे भी करके। द रीजन मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझाऊंगा, ये एक हर एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेकिन दिस इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू कि ये सब चीज कैसे याद रखना है, इसके शॉर्टकट्स ढूंढिए आप। एग्जाम में पूछेंगे ट्यूलिप मेनिया जो हॉलैंड में हुआ वो कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1634 से 1637 के बीच में हुआ। ठीक है। फ्यूचर्स मार्केट राइस जापान में जो चालू हुआ वो कौन सी सेंचुरी में हुआ? इट इज 17th सेंचुरी। तो ये जितने पॉइंट्स है, जितने हिस्ट्री के पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डेरिवेटिव का प्राइस कौन डिसाइड करता है? तो इट इज डिसाइडेड बाय अंडरलाइंग एसेट। लेकिन ये ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। एग्जाम में क्या करेंगे, उन लोग पूछेंगे कि भाई गोल्ड चल रहा था इतने रुपए पे और डेरिवेटिव जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? तो भाई प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, बराबर है? तो मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये 2 स्लाइड है, ये देखो
starting from 12th century and ending in 1983. ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, सिर्फ इसको एक बार देख लीजिए। याद रखना इसमें से किसी पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई 10 चैप्टर है, हर एक में से 10-10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, यस और नो। लेकिन कुछ चैप्टर्स बड़े होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें से ज्यादा हो सकता है 12 क्वेश्चन पूछे। कुछ चैप्टर्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, हो सकता है उसमें से 8 क्वेश्चंस पूछे। लेकिन हम अज्यूम करके चलेंगे कि हर एक में से 10-10 क्वेश्चंस तो पूछेंगे। तो यहां पे ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल का हमारा लेक्चर अगेन इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7 and it will be ending by 8:30 or 9. 8:30 और 9। किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है तो प्लीज लेट मी नो। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेरीज, नो क्वेश्चंस? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो। Till then, bye. Have a good time. God bless you, बेटा. Thank you. अच्छा रुको, साची को कुछ पूछना है। सॉरी साची। यस बेटा। सर आपने जैसे पहले कहा था कि एक्सपायरी डेट पर खुद ही लॉट्स बिक जाते हैं या बाय कर हो सकते हैं, तो वो खुद ब खुद कैसे प्रोसेस हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मार्केट एंड हो गया ना। ठीक है, लास्ट डेट था, लास्ट डेट में 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। ठीक है, 10:30 बजे प्राइस था 1010 रुपीज। अब वो प्राइस हिलेगा ही नहीं, फ्लक्चुएट होगा ही नहीं। मैंने कितने में खरीदा था? 1000 में। तो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। वो स्क्वायर ऑफ बोलते हैं उसको मार्केट में। स्क्वायर ऑफ मतलब बाय किया तो अपने आप सेल हो जाएगा एट 1010 रुपीज, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। बाय किया है तो सेल होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने हिसाब से कर देगा उसको। देख मैं एक चीज बता रहा हूँ, 1000 लोगों ने बाय किया है तो 1000 लोग सेल करेंगे। हाँ। जिनकी बाइंग और सेलिंग ज्यादा या कम है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करेगा। अच्छा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्क्वायर ऑफ सबकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। जिसने खरीदा है उसको बेचेगा और जिसने बेचा है उसका खरीदेगा। स्क्वायर ऑफ होना ही है। उसमें दोनों का कंसेंट लगेगा ना, जो बाय और सेल कर रहे हैं। जब बेटा आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने कंसेंट पहले ही दे दिया। अच्छा। मैं आपको बात करता हूँ। सांची, आगे चल के अगर डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा डेरिवेटिव का, जिसमें आप कंसेंट दोगे। अच्छा। कि भाई अगर मैं भूल गई तो स्टॉक एक्सचेंज को पूरा अधिकार है मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं देखता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो भी होगा वो तुम्हारा है, लेकिन स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। अच्छा। एंड सर जब वो सेल कर देंगे तो जो उसका अमाउंट है वो हमारे खुद ब खुद बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में? यस, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि आप ही का डीमैट अकाउंट है और आपके डीमैट अकाउंट लिंक्ड है विद योर बैंक अकाउंट। तो जैसे ही डीमैट अकाउंट में आप कोई भी शेयर बेचते हो तो उसका प्राइस अपने आप आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एनी फर्दर क्वेरीज? Okay, then bye. Have a good time. God bless you. Thank you very much. Bye.